Hello students, today our topic is determinants. So first we define what is a determinant. So determinant is a number associated with every square matrix. In previous topics you learn about square matrix. So every square matrix can be associated with a number. Okay, you can say that is the value of matrix, which is called as determinant of the square matrix. Determinant is always a number. It can be a real number or it can be a complex number. So determinant of a square matrix A equals to Aij of order m is denoted by determinant A equals to determinant Aij. This symbol is used for determinant. Sometimes it is also written as DETA in alphabet. DETA means determinant of A. This same symbol like that we have used modulus symbol in 11th standard. So here don't confuse with the modulus sign. It is determinant A. और जो वैल्यू आएगी that will remain as it is, either it is positive or negative. Okay, it is not related to modulus. Let's see example first. Let A equals to matrix 4. Matrix of 4, it is square matrix of order 1, then its determinant is equals to determinant of 4 equals to 4. जो वैल्यू है वो एज इट इज आ गई बिकॉज इट इज़ ए determinant of order 1. Matrix order square matrix of order 1, that's its determinant. Let next example, it is a square matrix of order 2. It is a square matrix of order 2, then its determinant is given by determinant A equals to 1 minus 1 2 3. Now determinant is always a number, so we have to calculate that number. So to find the value of determinant A of the square matrix order 2, let's simplify it. To obtain that, we have to always cross multiply. So 1 is multiplied to 3. First upwards to downward, 1 multiply 3, diagonally multiply होगा 1 का 3 से, and then 2 is multiplied to minus 1, फिर दूसरा diagonal का multiply होगा. So to solve a determinant of order 2, 1 is multiplied 3, so it is equals to determinant A is equals to 1 into 3. then there is always negative sign, हमेशा माइनस आएगा वहाँ पे. 2 into minus 1, okay, और that is equals to 3 plus 2, so determinant A is equals to 5. okay, it is always multiply diagonally 1 into 3 and 2 into minus 1, और बीच में माइनस का साइन आएगा always. so value of this determinant A equals to 5, जो A स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 है. इट इज़ ए नंबर. लेट्स सी वन मोर एग्जांपल. so it is also a determinant of square matrix of order 2, so its determinant is 3 2 1 7. now to find its value, we multiply diagonally. 3 is multiplied to 7 and 1 is multiplied to 2. so determinant A is equals to 3 into 7, then always a negative sign minus 1 into 2, so that is 21 minus 2, so value of determinant is 19. so this is how can we solve a square matrix of 2 and its determinant. the determinant of order 2 है, that is always solved by multiplying diagonally and then subtracting the values. so determinant is always a number associated with every square matrix. only square matrices have determinant, only square matrices. let's see next example. example 4. now let a square matrix of order 3, it is a square matrix of order 3, 3 into 3, square matrix of order 3, then its determinant is given by this. determinant is 2 0 minus 1 5 1 0 0 1 3. now
we have to find the value of this determinant. So we need to expand it. First we expand it. You can expand it along with any row or column. आप इसी को किसी भी रो के along या किसी भी कॉलम के along expand कर सकते हैं. Okay. So here we will expand along first row. Now when we expand it, we have to take the sign. जो एलिमेंट्स है जिस रो या कॉलम के आप अलोंग इसको एक्सपेंड करोगे उसके आपको साइन लेने पड़ेंगे. ये मैंने नीचे बनाया है. डिटर्मिनेंट ए, पोजीशन दी है A11, A12, A13, A21, A2, A23. सो जो सर्किल किए हैं दीज विल ऑलवेज नेगेटिव. ये नंबर के आगे हमें माइनस साइन लगेंगे. जब भी एक्सपेंड करेंगे वी हैव टू पुट नेगेटिव साइन बिफोर दीज नंबर्स जो मैंने सर्कल किए हैं. यानी फर्स्ट रो में सेकंड रो में फर्स्ट और थर्ड, और फोर्थ रो में थर्ड रो में सेकंड. या यू कैन टेक साइन विद देयर पोजीशन. जैसे A11 है फर्स्ट, 1 + 1 हुआ. A11 जो पोजीशन है 1 + 1 हुआ 2, 2 इज़ इवन तो वो प्लस का होगा. नेक्स्ट A12 है 1 + 2 3, इसकी पोजीशन हुई नेगेटिव, इसके साथ नेगेटिव आएगा क्योंकि पोजीशन हुई इवन. यानी जो किसी भी एलिमेंट की जो पोजीशन बनती है A11, A12, A13 या A21, A22, आप उस पोजीशन के नंबर को ऐड कीजिए. जैसे A21 है तो 2 + 1 हुआ 3. ओड आएगा तो उससे पहले नेगेटिव साइन आएगा, इवन आएगा तो उससे पहले पॉजिटिव आएगा. जैसे ये A32, 3 + 2 का 5, तो उससे पहले हमें माइनस लगाना होगा. तो हम किसी भी रो या कॉलम के अकॉर्डिंग अलोंग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं. और एक्सपेंड करने के लिए हमें उसके पहले नंबर के पहले प्लस या माइनस साइन लगाना है. या तो आप ये 4 लर्न कर लीजिए कि फर्स्ट रो में सेकंड एलिमेंट नेगेटिव होगा, सेकंड रो में फर्स्ट और थर्ड नेगेटिव होगा, और थर्ड रो में सेकंड होगा, या उसकी पोजीशन के हिसाब से. सो लेट एक्सपेंड इट. डिटर्मिनेंट A = 2. हम फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड करते हैं. 2 आ गया. अब क्या करना है इसको एक्सपेंड करने के लिए. इस 2 के लिए इसकी मैंने प्लस लगा दिया क्योंकि इसकी पोजीशन A11 है, 1 + 1 2. अब इस 2 के लिए हम इसका कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 लिखना है. इस 2 से रिलेटेड डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 लिखना है. उसके लिए क्या करना है, वी हैव टू लीव दैट रो एंड कॉलम इन विच दिस एलिमेंट लाई. जैसे मैंने ये क्रॉस कर दिया, जिस रो में 2 के लिए लिखना है तो जिस रो में 2 लाई कर रहा है, जिस कॉलम में 2 लाई कर रहा है उनको छोड़ देंगे. बाकी जो एलिमेंट बचेंगे, बाकी एलिमेंट कौन से बचे, 1 0 1 3, ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2. इसका 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 1 0 1 3. जिस भी रो या कॉलम के आप अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं उस एलिमेंट के लिए उस रो और कॉलम को छोड़ दीजिए जिसके अंदर वो लाई करता है. जैसे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ने छोड़ दिया, बाकी 4 एलिमेंट बचे 1 0 1 3. इसका एक ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट बन गया. ये 2 का कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट है. नाउ नेक्स्ट आता है एलिमेंट 0. ये क्या है, A12, इसकी पोजीशन 1 + 2 हुआ 3, तो नेगेटिव आएगा. ये आप लर्न कर लीजिए कि जो बीच वाला है फर्स्ट रो है उसके साथ मैंने यहाँ नेगेटिव लगा दिया. फिर एलिमेंट हमारा क्या है 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा, -0. अब 0 के लिए हमने इसका कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 लिखना है, इसका 0 से मल्टीप्लाई करना है. तो सेम मेथड, यू हैव टू लीव दैट रो एंड कॉलम इन विच दिस एलिमेंट 0 लाई. तो 0 लाई कर रहा है आपकी फर्स्ट रो में, तो हम फर्स्ट रो को छोड़ देंगे. और सेकंड कॉलम में लाई कर रहा है, सेकंड कॉलम को छोड़ दीजिए, क्रॉस कर दिया मैंने. तो व्हाट लेफ्ट, 5 0 0 3. तो ये आ गया 5 0 0 3. ये आ गया 0 का कॉरस्पॉन्डिंग. नाउ अब नेक्स्ट एलिमेंट के लिए प्लस आएगा. फर्स्ट रो में आप देख लीजिए प्लस नेगेटिव फिर प्लस, यहाँ पे हम प्लस लगा देते हैं, ये प्लस आ गया. फिर हमारा एलिमेंट है -1, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, यहाँ पे -1 आ जाएगा, ये -1 आ गया. अब -1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमको डिटर्मिनेंट लिखना है. तो डिटर्मिनेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू -1. फिर सेम मेथड है,
उस रो और कॉलम को छोड़ दीजिए आप, लेफ्ट दैट रो एंड कॉलम इन विच दिस एलिमेंट लाई। तो ये मैंने क्रॉस कर दिया, तो हमारे पास क्या आया 5101, तो 5101 ये आ गया। तो ये इसको एक्सपेंड कर दिया हमने अलोंग विद फर्स्ट रो। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप फर्स्ट थिंग किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। हमने फर्स्ट रो के लिए किया, ये एक्सपेंड हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। आपको पता है ये कैसे सिंप्लीफाई करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके और सब्ट्रैक्ट करके, और ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो डिटर्मिनेंट ये आ जाएगा आपका, पहले 2 है हमारा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस आएगा, फिर हमेशा 1 मल्टीप्लाई 0, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 0, फिर नेक्स्ट माइनस 0, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू 3 माइनस 0 इंटू 0, देन नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -1, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 1। ये एक्सपेंड कर दिया हमने डिटर्मिनेंट जो ऑर्डर 2 था उसको। तो इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करोगे, डिटर्मिनेंट a = 1 आ गया। दिस इज द मेथड हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। जो ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट है 3 इंटू 3 का, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। केवल आपको किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करके उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दो इम्पोर्टेंट चीज़ें, एक तो आपको एलिमेंट की पोजीशन के हिसाब से साइन लेना है, और दूसरा उसके कोरस्पोंडिंग डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। सो दिस इज ए डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ये इसका डिटर्मिनेंट आ गया। अब इसको एक्सपेंड करेंगे हम थर्ड रो के अलोंग, 3 - 1 4। थर्ड रो में साइन क्या होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट के लिए पॉजिटिव, सेकंड के लिए नेगेटिव, और थर्ड के लिए फिर पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। ये यहाँ लिखा है, उस साइन के हिसाब से नहीं बता रहा, मैंने जो अभी आपको फिगर दिखाई थी उसके हिसाब से। ये 3 1 है, तो पहला आ गया 3 हमारा 3। अब इसके कोरस्पोंडिंग लिखना है हमने, प्लस लगाया है +3, इसके कोरस्पोंडिंग लिखना है हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। तो इन रो और कॉलम को छोड़ दिया जिसमें लाई करता है, थर्ड रो में लाई करता है फर्स्ट कॉलम है, उसको छोड़ दिया। नाउ वी लेफ्ट विद 4 एलिमेंट्स। तो ये 4 एलिमेंट्स क्या आ गया आपके 3759, 3759 ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। अब थर्ड रो में सेकंड एलिमेंट नेगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस लगाएंगे। ये माइनस -1 की वजह से नहीं लगा रहे, -1 तो अलग से आ गया, माइनस आ गया। अब एलिमेंट हो गया -1, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा -1। नाउ we have to write corresponding determinant of order 2 which is corresponding to this -1। -1 के जो corresponding होगा वो determinant। so leave that row and column। so थर्ड रो में और सेकंड कॉलम में उनको छोड़ दिया। what element left 1 7 - 2 9। तो ये determinant of order 2 बन गया 1 7 - 2 9। ठीक है जी। और नेक्स्ट एलिमेंट थर्ड है, उसकी पोजीशन क्या होती है 3 3, 3 + 3 होता है 6, 6 इवन है तो यहाँ पे प्लस आएगा। वैसे भी थर्ड एलिमेंट प्लस होता है, प्लस। नाउ 4 आ गया। नाउ वी हैव टू राइट कोरस्पोंडिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 to 4। 2 के लिए 4 के लिए कोरस्पोंडिंग, तो लीव दैट रो एंड कॉलम इन विच 4 लाई। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम हमने छोड़ दिया। रिमेनिंग एलिमेंट लेफ्ट 1 3 - 2 5, इनका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1 3 - 2 5। सो हाउ इट इज़ रिटन इन एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको एक्सपेंड करके हमने लिख दिया है। ठीक है। और नाउ 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 9 -5 मल्टीप्लाई बाई 7, वही क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में नेगेटिव साइन, फिर माइनस माइनस +1 हो जाएगा यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाई 9 -2 मल्टीप्लाई बाई 7, then +4 1 मल्टीप्लाई बाई 5 -2 मल्टीप्लाई बाई 3। ये इसको एक्सपेंड करके लिख दिया। अब हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 को भी एक्सपेंड करके लिख दिया।
Now let's simplify it. So 3 9 3 27 minus 35 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 14, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस 4 5 प्लस 6, माइनस माइनस वहाँ भी प्लस हो जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 27 माइनस 35 माइनस 8 आएगा, माइनस 8 इंटू 3 माइनस 24 आ जाएगा, 14 प्लस 9 23 और 4 इंटू 11 44। सो फाइनली वी गेट आंसर एज 43। ये आ गया इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ठीक है, सो ये ऑर्डर थ्री का डिटर्मिनेंट था। और सिंप्लीफाई करने के लिए मेन चीज़ है कि आप जब इसको एक्सपेंड करेंगे किसी भी रो या कॉलम के अलोंग, उसके हिसाब से साइन लेना। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखते हैं। अगेन दिस इज ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 है। नाउ वी विल एक्सपेंड अलोंग सेकंड कॉलम। अब हम इसको सेकंड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। सेकंड कॉलम के एलिमेंट हो गए 3 4 माइनस 6। तो सेकंड कॉलम में क्या आता है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। फर्स्ट एलिमेंट के लिए नेगेटिव लेना है हमें, सेकंड के लिए पॉजिटिव और थर्ड के लिए नेगेटिव। तो फर्स्ट हमारा 3 है, इसके लिए नेगेटिव लेना है, तो यहाँ पे आएगा -3। फर्स्ट सेकंड कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट नेगेटिव लेते हैं, पोजीशन होती है A12, तो 1 + 2 हो गया 3 ओड है तो माइनस आएगा। नाउ वी हैव टू राइट इज कोरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। तो लीव दैट रो एंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हमने लीव किया। तो कौन सा एलिमेंट है हमारे पास, 0 5 1 7, ये आ गया जी 0 5 1 7। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट 4 है, इसके लिए प्लस आएगा, इसकी पोजीशन होती है A22, 2 + 2 even हो गया, तो प्लस आ गया 4। अब सेम मेथड इसके लिए हमें कोरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 लिखना है। सो लीव दैट रो एंड कॉलम, उस कॉलम और रो को लीव कर दीजिए, छोड़ दीजिए इन विच दे लाई। सो व्हाट एलिमेंट लेफ्ट, -1 2 एंड 1 7। तो ये आ जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 -1 2 1 7। नाउ थर्ड एलिमेंट, इसकी पोजीशन क्या होती है 3 2, 3 + 2 5 हो जाता है, तो माइनस आएगा, माइनस आ गया। फिर -6 एलिमेंट है हमारा, -6। अब इसका कोरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट लिख देंगे ऑफ ऑर्डर 2। सेम मेथड बाय लीविंग दैट रो एंड कॉलम। तो ये आ गया -1 2 0 5 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑर्डर 2। तो ये हमने इसको एक्सपैंड करके लिख दिया। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू -3, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 0 to 7, 0 × 7 एंड माइनस, हमेशा माइनस आएगा, 1 × 5। फिर +4 क्रॉस मल्टीप्लाई -1 × 7, अगेन -1 × 2। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +6 आ गया, -1 × 5 -0 × 2। ये इसको सिंप्लीफाई कर दिया हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 को। सिंप्लीफाई इट मोर, फिर आएगा -3 0 - 5 +4 -7 - 2 +6 -5 -0। इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू +15 -36 -30। So determinant A is -51।
सो दिस इज़ हाउ टू सॉल्व अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। 3 एग्जाम्पल से हमने इसको क्लियर किया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको डायरेक्टली करने में नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 4.1। 2 ही क्वेश्चन कर बता रहा हूँ मैं आपको, बाकी क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर सकते हैं। इट इज ए मैट्रिक्स ऑफ गिवन order 2 1 2 1 4, then we have to show that determinant of 2a is equals to 4 into determinant a। जो लेफ्ट साइड है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a लिखा है, इसका ना पहले हमें मैट्रिक्स a को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सो लेट फाइंड द वैल्यू ऑफ लेफ्ट साइड 2a। वी हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। तो पहले मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2a इज इक्वल टू 2 इंटू मैट्रिक्स a। और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई पता है आपको, 2 इज मल्टीप्लाई टू ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो हर एलिमेंट को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया हमारा मैट्रिक्स 2a। नाउ वी हैव टू फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट 2a इज इक्वल टू 2 4 8 4। यहाँ पे गलती से डिटर्मिनेंट a लिखा गया, दैट इज डिटर्मिनेंट 2a। नेक्स्ट स्टेप यहाँ देखते हैं, तो 2 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 4। सो ये डिटर्मिनेंट a नहीं है, डिटर्मिनेंट 2a है। इसको आप करेक्ट करके नोट कर लेना। -24 वैल्यू आ गई है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट साइड के लिए पहले हमने मैट्रिक्स a को 2 से मल्टीप्लाई किया, उसका फिर डिटर्मिनेंट फाइंड किया। ओके, दिस इज़ द लेफ्ट साइड। फर्स्ट वी मल्टीप्लाई मैट्रिक्स a बाई 2 और फिर इसका हमने डिटर्मिनेंट 2a फाइंड किया -24। यहाँ पे a लिखा है, आप 2a लिखना है इसको, by mistake ये a रह गया। इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड। इट इज़ 4 इंटू डिटर्मिनेंट a। तो 4 डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 4, और डिटर्मिनेंट a क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स a क्या हमारा 1 2 4 2। सो 4 डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 4 इंटू दिस डिटर्मिनेंट। अब इसको सोल्व करते हैं। 4 डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 4, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2, तो ये भी -24 हो गया। सो यू कैन सी बोथ वैल्यूज आर इक्वल। डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट a। डिटर्मिनेंट 2a इज इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट a। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन ऑफ 4.1। डिटर्मिनेंट 2a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 4 इंटू डिटर्मिनेंट a। Let's see one more question. It is question 7th. Find the value of x. Its first part, x की वैल्यू फाइंड करनी है। And it is given determinant 2 4 5 1 is equals to determinant 2x 4 6x। तो इट इज़ नॉट लाइक दैट मैट्रिक्स। जैसे मैट्रिक्स में हम करते थे, क्या करते थे, इफ़ 2 मैट्रिसेस आर इक्वल वी कंपेयर देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो यहाँ पे आप कंपेयर करके वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, यू हैव टू सिंप्लीफाई द डिटर्मिनेंट, बिकॉज डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज ए नंबर। पहले हम डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे, देन वी गेट ए इक्वेशन इन x, एंड बाय सॉल्विंग दैट इक्वेशन वी कैन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ x। तो आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स माइनस 6 इंटू 4। आपको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, कंपेयर नहीं कर सकते हैं। दीज आर नॉट मैट्रिसेस, दीज आर डिटर्मिनेंट्स। आपको सिंप्लीफाई करके वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो यार 2 माइनस 20 और 2x स्क्वायर माइनस 24। सिंप्लीफाई इट मोर, -18 और इधर +24 हो जाएगा आके, इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। सो इट इज़ 6 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, 3 इक्वल्स टू x स्क्वायर। सो फाइनली x इक्वल्स टू ±√3 बाई टेकिंग स्क्वायर। अब देख लीजिए x की वैल्यू क्या आई, ±√3, और कंपेयर करते तो आती है वहाँ पे 1। दैट इज़ नॉट ट्रू। सो ऑलवेज रिमेंबर इन डिटर्मिनेंट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x यू हैव टू एक्सपैंड इट। आपको उसको एक्सपैंड करके एक इक्वेशन बनेगी, फिर आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ये मैट्रिक्स की तरह सोल्व नहीं करना है। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू डिटर्मिनेंट, in which
you learn that what is a determinant and how to find its value. So thank you. If any doubt, you can rewatch this video. Thanks again.